بچوں کو دھوکہ دے رہی ہو تو کیا کروں، میرے پاس جب کچھ ہے نہیں۔ تم نے امیر المومنین سے کیوں نہیں کہا، عمر سے کیوں نہیں کہا؟ اس عورت کا جواب دیکھو کیا ہے، کہتی ہے میں عمر کے پاس کیوں جاؤں کہنے کے لیے، کیوں جاؤں میں؟ عمر امیر ہے، لوگوں کا ذمہ دار ہے، عمر کی ڈیوٹی ہے یہ پتہ لگانا کہ کس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب اسلامک چینل میں۔ دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں مولانا جرجیس صاحب کی ایک بہت ہی اچھی تقریر، جس میں مولانا جرجیس نے حضرت عمر کا قصہ بتایا ہے اور حضرت عمر کا انصاف بیان کیا ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں مولانا جرجیس نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کی تاریکیوں میں گشت کیا کرتے تھے، یعنی جب خلیفہ تھے تو رات کے اندھیروں میں گھومتے تھے کہ کوئی لوگ پریشان تو نہیں، کوئی بھوکا تو نہیں، یا کوئی کسی پروگرام میں تو نہیں۔ دوستوں حضرت عمر روز رات کو وقت کیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ رات کو حضرت عمر گشت کر رہے تھے تو کوئی پریشان حال ان کو ملا۔ تو دوستو یہ ایسے ہی واقعہ ہے، اس لیے اس واقعے کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں، بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے دوستو۔ اور ویڈیو کو اچھی جگہ اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کرو اور ویڈیو کو لائک کرو، اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولو۔ چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ورنہ ایک عورت کہہ دیتی تھی رات کے اندھیرے میں، ایک عورت رات کے اندھیرے میں حضرت عمر نے دیکھا کہ ہانڈی جل رہی ہے، اس عورت کے پتیلی کا ڈھکن کھول کے دیکھا تو اس میں صرف پانی گرم ہو رہا ہے اور 2-3 پتھر پڑے ہوئے۔ اس عورت سے پوچھا اے یہ کیا ہے، پانی کے اندر پتھر؟ کہا کہ میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ کہتی ہے کیا کروں، بچے بھوکے ہیں، ان کو تسلی دے رہی ہوں، آگ جلتی رہے گی، ہانڈی پکتی رہے گی، پتھر ابلتے رہیں گے، اور ان بچوں کو انتظار میں، ہاں میری ماں کھانا بنا رہی ہے، نیند آ جائے گی اور بھوکے سو جائیں گے۔ بچوں کو دھوکہ دے رہی ہو تو کیا کروں، میرے پاس جب کچھ ہے نہیں۔ تم نے امیر المومنین سے کیوں نہیں کہا، عمر سے کیوں نہیں کہا؟ اس عورت کا جواب دیکھو کیا ہے، کہتی ہے میں عمر کے پاس کیوں جاؤں کہنے کے لیے، کیوں جاؤں میں؟ عمر امیر ہے، لوگوں کا ذمہ دار ہے، عمر کی ڈیوٹی ہے یہ پتہ لگانا کہ کس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے اور کس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ میرے بھائی تم گواہ رہنا، حضرت عمر سے ہی کہہ رہی ہے، میرے بھائی تم گواہ رہنا، کل قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ آج کوئی یوگی جی سے کہہ دے دیکھ لیں گے تمہیں قیامت کے دن، یا کچھ الٹا سیدھا ایک جملہ بول دے، ضمانت نہیں ہوگی آپ کی، راش دروہ کا مقدمہ ٹھک جائے گا۔ راش دروہ کا ایک تو ٹھونک دو والی بھاشا، اور دوسرا مقدمہ دیکھا نا ڈاکٹر کفیل کے اوپر کیسے کیسے مقدمے چلائے تھے، جس نے بچوں کی جان بچائی ہو، اپنے گھر کا آکسیجن لے کر بچوں کی جان بچائی ہو، اس کی اوپر راش دروہ کا مقدمہ۔ حضرت عمر سے کہا اس نے قیامت کے دن میں عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ عمر بولے بہن عمر کو کیا معلوم تمہاری حالت کا؟ کہ نہیں معلوم ہے تو معلوم کرنا چاہیے، زیادہ پکش مت لو عمر کا، زیادہ پکش مت لو عمر کا، چلو یہاں سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری بہن تم رکو، تم بہن ہو، میں گھر سے کچھ انتظام کرتا ہوں۔ یہ نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں۔ اندر گئے، دربار خلافت میں اپنے غلام مسلم کو جگایا، آٹے کی ایک بوری، گھی وغیرہ، اناج وغیرہ، اور اس زمانے میں جو پھل فروٹ جو اناج چلتا تھا اس کی ایک تھیلی لی، ایک پیڑ پہ لادی، تیل و گھی اپنے ہاتھ میں لیا اور چلنے لگے۔ ان کا غلام کہتا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہمارے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، یہ سارا بوجھ اٹھانے کے لیے میں ہوں، آپ نہیں۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا سنیے، وہ اس ملک کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا نہیں 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 نہیں،
कयामत के दिन उस औरत ने मेरा गरीबान पकड़ने की बात कही, तुम्हारा नहीं, इसलिए इस गल्ले की बोरी को मैं ही अपनी पीठ पर ला दूंगा और मैं ही लेकर जाऊंगा। हजरत उमर उस गल्ले को लाद कर जाते हैं, अपने हाथ से आटा गूंथते हैं, अपने हाथ से सालन तैयार करते हैं, अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाते हैं, फिर उस औरत से कहते हैं बच्चों की माँ बहन तुम भी खाना खा लो। फिर उस औरत ने खाना खाया। जब हजरत उमर फारूक ने उन सबको खाना खिला दिया और वहां से जब आने लगे तो उस औरत ने पीछे से दामन पकड़ के कहा, लोग कितने बेवकूफ हैं जो उमर को खलीफा बना देते हैं। उमर के अंदर खलीफा होने वाली कोई चीज नहीं पाई गई। अरे खलीफा बनने के लायक तो आप हैं, अमीरुल मोमिनीन तो बनने के लायक आप हैं। आप रात में उठते हैं और गरीबों की देख रेख करते हैं। आपने हमारे बच्चों का पेट पाला, अल्लाह आपका पेट आपके बच्चों को आबाद रखे। हजरत उमर फारूक रोने लगे। उस औरत ने कहा तो आपने मुझे बहन कहा है और आप रो रहे हैं। आपने मेरे घर में खुशियां दी है, बच्चों को खिलाया है और मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू। कहा नहीं मेरी बहन, तेरी वजह से आंसू नहीं, आंसू तो इन जुमलों से आए हैं कि तूने कहा कयामत के दिन में उमर का गरीबान पकड़ूंगी। मेरी बहन मैं तुझे कैसे बताऊं कि मैं ही उमर हूं, अमीरुल मोमिनीन मैं ही हूं, और ये मेरी गलती है कि अब तक तेरे घर की खबरगिरी मैं नहीं कर सका। मेरी बहन कयामत के दिन अब मेरा गरीबान मत पकड़ना। मेरी बहन अल्लाह के दरबार में इतनी गवाही दे देना कि मेरा एक जुमला जब सुना तो इसने मेरे बच्चों को खिला दिया था और अपनी जिम्मेदारी पूरी की। क्या जिम्मेदार देखिए कैसा था, वो अपनी जिम्मेदारी को समझता था। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, अपना हो या पराया, हर एक की खिदमत करना ये इस्लाम कहलाता है। यही इस्लाम का दर्स है, यही इस्लाम है, इसी इंसानियत का नाम इस्लाम है। हम भूल जाते हैं, हम फरामोश कर देते हैं। 4 साल हो जाते हैं हजरत उमर फारूक को। 10 साल तो खिलाफत की है, 10 साल में 4 साल ऐसे गुजरे कि रात के अंधेरे में रोजाना एक घर में जाते। एक सहाबी है हजरत तुफैल दौसी, कबीले दौस से उनका ताल्लुक। उनको शक होता है कि उमर ये रात को रोजाना कहां जाते हैं। पूछ पूछ के थक गए, लेकिन हजरत उमर ने नहीं बताया कि मैं रात को कहां जाता हूं। एक दिन तुफैल दौसी को तजस्सुस सूझ गया, देखें कहां जाता है उमर। रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जासूसी करने लगे। हजरत उमर आगे आगे जा रहे हैं, तुफैल दौसी पीछे पीछे पेड़ से छुप छुप के कि उमर मुझे देख न लें। हजरत उमर दाएं बाएं देख रहे हैं, लेकिन इनको पीछे का कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। चल दिए 4-5 मील दूर एक बियाबान आबादी में, आज बियाबान जगह आ जाते हैं। 5-6 झोपड़ियों के अलावा वहां कुछ नहीं है। एक झोपड़ी में चिराग जल रहा था। हजरत उमर फारूक ने दाएं बाएं देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा, उस झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। तो तुफैल दौसी को शक हो गया कि उमर इतनी रात में इस झोपड़ी में क्या करने गया। इंसान की फितरत है, रात के अंधेरे में आप भी अगर दाएं बाएं देखें और कोई ना आपको देख रहा हो, चुपके से आप किसी घर में घुस जाएं, वो भी रात के अंधेरे में, तो मेरे दिल में तो तरह तरह के ख्यालात उठेंगे ही कि आप क्यों गए, इतनी रात में क्यों जा रहे हैं। तुफैल दौसी कहते हैं कि मैं उमर के निकलने का इंतजार करने लगा कि इतनी रात में उमर इस घर में क्या करता है और रोजाना आता है क्या करता है। काफी देर के बाद उस झोपड़ी से जब हजरत उमर निकले और सीधे चले गए, तुफैल दौसी ने कहा जा रहे हैं जाने दो, मैं झोपड़ी में जाके देखूं कि इसमें क्या है। हजरत तुफैल जब उस झोपड़ी में घुसते हैं तो क्या देखते हैं कि एक कोने में चिराग जल रहा है। उस चिराग के पास खजूर के पत्तों की बनी हुई एक चटाई बिछी हुई है। उस चटाई के ऊपर कोई लेटा हुआ है। करीब गए तो पता चलता है कि एक औरत है, और करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत है, और करीब गए तो क्या देखते हैं कि वो तो आंखों से अंधी है।
दांत उसके मुंह में नहीं है और हाथों से कोड़ी और पैरों से लंगड़ी है। हजरत तुफैल उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं माँ। उसने कहा जी क्या मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूं तुम बताओगी? उसने कहा बोलो बेटा। कहा ये आदमी जो तुम्हारे पास आया है और अभी अभी यहां से गया है, ये कौन है? क्या तुम इसको जानती हो? क्या तुमने कभी इसको देखा है? कहा नहीं, मैं आंखों से अंधी हूं, मैं क्यों मैं कैसे देख सकती हूं? कहा मां मुझे जल्दी बताओ कि ये आदमी यहां आता है तो कम से कम तुम्हें बताया तो होगा कि मैं कौन हूं। कहा नहीं मेरे बेटे, ये आदमी यहाँ 4 साल से बराबर कंटिन्यू आता है, चाहे कितनी बारिश हो, चाहे कितनी आंधी हो, चाहे कितना तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये यहाँ जरूर आता है। लेकिन 4 साल से आज तक इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। यहाँ तो 100 रुपए मदरसे में चंदा देते हैं तो नाम के साथ देते हैं कि फला साहब ने दिया। ऐलान करो मौलाना साहब, 1000 रुपए चंदा देते हैं तो उसमें भी हमें शोहरत चाहिए, फला ने दिया। और यहाँ बैठे रहते हैं कंपटीशन में, मेरा दुश्मन कितना दे रहा है, अगर उसने 1 दिया तो उसको दिखाने के लिए हम 1200 देंगे, हम 1500 देंगे। ये कंपटीशन है हमारे, सब नेकी बेकार। ये सिस्टम ही पहली बात तो हमें गलत लगता है कि लाइए मौलाना साहब ये 100 रुपए लीजिए, मेरे अब्बू के लिए दुआ कर दी, अल्लाह उनको जन्नत दे। अरे आप मदरसे को चंदा दीजिए, आप दिल में नियत कर लीजिए कि मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, आपको सवाब मिलेगा। मौलाना साहब से नाम ले लेकर क्यों दुआ करवा रहे हो? जर्जी साहब को अपने बाप को सवाब पहुंचाना है, जर्जी साहब 1000 रुपया देंगे, दिल में नियत है मैं अपने बाप की तरफ से दे रहा हूं, बाप को सवाब मिलेगा। 20 साल हो गई तकीने करते करते, यही बताते बताते, लेकिन नहीं बदली आ रही ये बात, नहीं वही धुर्रा चला आ रहा है, उसी पे हम चल रहे हैं। कुरान जिंदाबाद।